बात करेंगे कि what is success and in becoming success or successful, do we need to set up goals and must have our vision or not? Or can we succeed even without setting goals and vision? Successful होना चाहते हो कि नहीं? तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? लेट्स सी क्या हम आज का सब्जेक्ट हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में लक्ष्य का महत्व क्या है? क्या आपने अपने लक्ष्य को पहचानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी यह सोचा कि किस लक्ष्य को हासिल करके आप गर्व और खुशी महसूस करेंगे? इन सवालों के बारे में अगर आपने नहीं सोचा तो आज सोचिए और तय कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या और क्यों होगा. ऐसा करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इन दिक्कतों के बाद जब आप इन सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको वो लक्ष्य हासिल होगा जो अब तक कहीं खोया हुआ था. So, what does this success mean to you? Dr. APJ Abdul Kalam said once that a success is when your signature turns into autographs. Okay, So when a is success turns into an autograph, that will see that as if you are a successful person. Yes? Okay. When we achieve what we desire for. Very good. When we achieve what we desire for. Good. Good answer. क्या नाम है आपका? Vishali Jain. विशाली जैन. विशाली ने अच्छी बात कही. If we achieve our desires, that is success. When we are rich, famous or powerful. Okay. इससे कितने लोग एग्री करेंगे? हाथ उठाइए. You want to be rich, famous and or powerful. Not many people. Okay. When you are satisfied with your life. When you are satisfied with your life. It's called success. And what will make you satisfied? Achieving your goals. Achieving your goals will make you satisfied. Yeah. And that is what will be success. Yeah. For me, success has very broad contour. And for me, success is not in terms of monetary benefit. For me, success is like how you impact the lives of people in a good way. Doing a public service for you is success? Yeah, like for children who are not getting education, imparting them education, equipping them with knowledge so that they can excel. No, but that could be your goal. आपका ये गोल हो सकता है कि हाँ मुझे फिलंथ्रॉफिक काम करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ऐसा सब कुछ करना है. वो तो आपका गोल हो गया. सक्सेस के माने क्या आपके लिए? I would say I would be successful when people know me for what I do and how am I recognized. Not worried about how much money do I get and not, but yes, people should know me in my ways. So you should become famous. Yes. Being famous is a successful thing for you. When there is a balance between such factors like health, wealth, and achievement of all other goals, that leads to true happiness. For me, that is success. Sir, according to me, success is following your passion and being the best in what you do. Following your passion and being the best in what you do. Following your passion. And being the best in what you do. And being the best in what you do. Okay. तो ये अब इसका मायने आप क्या सोचते हैं जो घर बैठे इस शो को देख रहे हैं, DSC शो? प्लीज सोचिएगा कि सक्सेस क्या है. मेरा ऐसा मानना है सक्सेस का माना, जैसे कि हमने अभी 15-20 लोगों से पूछा, हर एक आदमी ने सक्सेस का अपना अपना नज़रिया बताया और ये सच है. सक्सेस अगर हम यहाँ 500 लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे हैं, तो 400 लोगों का अपना अपना नज़रिया सक्सेस के बारे में अपना अपना अलग अलग होगा. मानते हैं इस बात को? सो इसके माने सक्सेस क्या है वो उसके लिए मुझे अपने मन में तय करना पड़ेगा कि मेरा ज़िंदगी का गोल क्या है, मेरा पर्पस लाइफ में है क्या,
मुझे क्या अचीव करना है जिंदगी में, isn't it? और उसके मुताबिक फिर आप अपना तय करेंगे what will be, how will, if I achieve my goal in life, if I achieve my objective of life, अगर मेरा कोई विजन है जिंदगी का, वो अगर मैं पूरा कर सकूं, उसको ही मैं सक्सेस कहूँगा, isn't it? जैसे किसी ने कहा यहाँ, one girl said कि fulfilling my desire is what success is. तो ये, और डिज़ायर हर एक की अपनी अपनी अलग है। हम जितने भी लोग हैं, हमारी अपनी डिज़ायर अलग अलग है। और एक बात और कि डिज़ायर भी हर समय में बदलती रहती हैं। आज यदि आप इस युवा इसमें हैं, आप MBA कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, इस समय आपकी डिज़ायर कुछ अलग है कि मुझे यहाँ से सक्सेसफुल होना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, मेरिट में आना है, उसके बाद मुझे इस तरह की सर्विस करनी है, या मुझे अपना बिजनेस करना है, हाँ, या मुझे अपने पापा को असिस्ट करना है, या मुझे इतना कुछ कमाना है जिससे कि मैं अपने भाई बहनों का शादी कर सकूं, परिवार चला सकूं। उसमें भी गोल आपके हर एक के अलग अलग होंगे। और जब आप लाइफ में यहाँ से निकलने के बाद 10 साल ज़िंदगी में गुजार चुके होंगे, शादी वादी हो चुकी होगी, एक आध बच्चा हो गया होगा, लालन पालन हो गए होंगे, उस समय शायद आपका गोल और दूसरा बदल जाए। क्यों? तो गोल एंड विजन ऑल्सो कीप चेंजिंग विद द चेंज ऑफ द टाइम। डू वी एग्री? लेकिन सक्सेस के माने ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पीनेस हो। इस बात से कितने लोग सहमत होंगे? जैसे आपने पीछे कहा कि रिच, फेमस और एंड और पावरफुल, मुझे नहीं लगता। मैंने बल्कि पिछले दिनों, अभी हर साल आता है इंडिया टुडे मैगजीन में, और माइटी एंड पावरफुल ऑफ द कंट्री। क्या पावरफुल मतलब ज़्यादा पैसा होना इज़ पावरफुल आप लोगों के मुताबिक? लेकिन वो तो ऐसा ही मानते हैं। ये भी बड़ा एक सब्जेक्टिव विषय है कि ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा रिच एंड फेमस होना कोई आवश्यक नहीं कि वो आदमी स्वयं खुद अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता हो। मुझे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा नहीं कभी, लेकिन अंदर से मैं यदि प्रसन्न हूँ, मेरे अंदर से मुझे खुशी है अगर, तो ही मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। ये मेरी अपनी परिभाषा है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी अपनी परिभाषा, मेरा अपना सोचना ये है कि जो चीज़ मुझे हैप्पीनेस दे, अंदर से खुश रखे, मुझे रात को सोते ही पिलो पे सर रखते ही नींद आ जाए, मुझे अगर मैं यहाँ से, मेरे से कोई किसी का बुरा ना हो, ये मेरे गोल हैं। वो अगर मैं ठीक अचीव कर सकूँ तो मैं समझता हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ। अभी जो काम कर रहा हूँ इस समय में, मेरा ये DSC शो का एक पर्पज़ है कि मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के, 50 साल बिजनेस किए हुए के, वो एक्सपीरियंसेस मैं किसी तरह से बांट सकूँ लोगों के अंदर। उनको अगर लाभ हो तो अच्छी बात है। सो एक बात हमने ये मानी कि सक्सेसफुल होना अपना अपना एक मकसद, अपना अपना इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव मैटर है। कोई सक्सेस की भाषा, परिभाषा मैं या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर थोप नहीं सकता, या थोपना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन उस सक्सेसफुल होने के लिए इतनी देर में जो मैंने बात की कि कोई विज़न होना ज़रूरी है, आपको अपना गोल सेट करना ज़रूरी है, कोई दिशा निर्देश करना ज़रूरी है। अगर वो दिशा तय नहीं करेंगे तो फिर हम क्या हैं, एक कटी पतंग की तरह से रहेंगे, ज़िंदगी हमारी वैसी रहेगी। जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ सवाल? So I have two questions. What should be the ultimate goal of life, and what should we do to remain focused on our goals? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ तो आपका अपना है सोचना। मेरे से अगर पूछेंगे, अगर आप और जो हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, उसमें तो ह्यूमन बीइंग का गोल तो बड़ा ऊंचा गोल है।
ultimately to find the ultimate truth. That is the goal of a human being. And that truth is not within this life. It is beyond our mind and matter. और वो आपका अपना अपना इंडिविजुअल गोल है. कोई भी व्यक्ति आपको बता नहीं सकता कि आपका क्या गोल होना चाहिए, आपका क्या मकसद लाइफ में होना चाहिए. ये हमने पढ़ा भी है और आप भी मानेंगे इस बात को. प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान भी 5 तरह के होते हैं. ज़िंदगी में आपने महसूस किया होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को, दोस्त को अपने आसपास में जानते होंगे ज़रूर, जिसका मकसद केवल और केवल खुद को देखना, खुद का लाभ करना, खुद को खुश रखना. ऐसे लोग देखे हैं आपने कोई आसपास? दे आर टोटली सेल्फ सेंट्रिक. उनके लिए इवन अपना परिवार भी जो है उसका कोई मायने नहीं रखता. परिवार को भी वो बाद में देखेंगे, पहले वो खुद अपना सोचेंगे, खुद अपनी बात करेंगे. उस आदमी को हम कहते हैं मिनरल ह्यूमन बीइंग. यानी जो मिनरल्स और मेटल्स देखते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, उन मनुष्यों को कहा मिनरल ह्यूमन बीइंग्स. जो व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अपने आसपास, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने कुछ आसपास के लोगों का अच्छा भी सोचता है, तो उसको हमने कहा वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, लेकिन वो फिर भी वो वेजिटेबल का पौधा या पेड़ जो भी कहिए, वो रहेगा अपने उसी दायरे में, वो मूव नहीं करता है. इसलिए उसको वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग कहा. फिर उसके बाद अगली जो अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है, तीसरी सीढ़ी पे उसको ले जाता है. उसको हमने कहा एनिमल ह्यूमन बीइंग्स. एनिमल ह्यूमन बीइंग्स का फितरत क्या रहेगी कि मेरा देश, मैं हिंदुस्तानी, या मेरी कम्युनिटी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, वहाँ तक आगे बढ़ेगा. हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान का भला हो, इसके अलावा नहीं सोचेगा. उसको एनिमल ह्यूमन बीइंग कहा. और चौथा फॉर्म ऑफ ह्यूमन इज ह्यूमन बीइंग, जो कहेगा कि पूरे संसार का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे देश की परंपरा है, इस देश की सोच है. उसको ह्यूमन बीइंग कहा. और उससे परे उसको क्या कहेंगे? मैंने एक वर्ड कॉइन किया है कि द पर्सन हु थिंक्स बियॉन्ड द ऑर्बिट. ऑर्बिट हमारा क्या है? जो कुछ हमने जाना, सीखा, हमको पढ़ाया गया, चाहे संसार में देखा, अपने आसपास होते देखा, फिल्मों में देखा, जो एक्सपीरियंसेस आए, वो हमें पता है कि ये सब कुछ होता है इस संसार में. लेकिन एक ऑर्बिट ऐसा भी है जो हम पहुंचे ही नहीं कभी. ऐसे लोगों को कहा कि उनको चाहे आप ट्रांसडेंटल ह्यूमन बीइंग कह दीजिए या कुछ भी कहिए, जो कि पूरे बीइंग का भला सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं. और ख़ास करके ये बात क्यों कही गई? क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम ही एक ऐसे बीइंग हैं इस सृष्टि में जो अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ओरिजिनल जो पहले कभी नहीं हुई हो वो कर सकते हैं, अपने आप को एक यूनिक कुछ वातावरण बना सकते हैं. वरना जो भी कोई बीइंग्स हैं, उनका कंप्यूटर पहले से सेट है. वो कोई कुछ, आप एनिमल्स देख लीजिए, प्लांट्स देख लीजिए, उनकी जो फितरत है वो पहले से बनी हुई है. वो उसके आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे. तो इसलिए हमने कहा कि मनुष्य अपना गोल, अपना विजन, अपनी चीज़ खुद स्वयं तय करे. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना घुस गए, या ऐसा भी कहूँ तो गलत नहीं होगा
कि हमने अपने आप को प्रश्न करना ही बंद कर दिया। मुझे शादी किए हुए बहुत साल हो गए, मेरे बच्चे हैं, खुश हूँ मैं, लेकिन जब शादी की तो नहीं पता था कि क्यों शादी कर रहा हूँ। अब जब तक अकल आई तो बड़ी देर हो गई थी। वाकई पूछना चाहिए कि भाई मुझे शादी करनी तो क्यों करनी है? क्या केवल इसलिए कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं? अपना परिवार आगे बढ़ाना है, अपना कुटुंब आगे बढ़ाना है, कोई नाम लेने वाला होना चाहिए, क्या कारण है? प्रश्न पूछिए। आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप को कि मैं वाई आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड वाई आई एम नॉट एनी अदर एनिमल, एनी अदर बीइंग, यू कुड हैव बीन एनी अदर बीइंग. We all believe, and this is the scientists today, even the Western world, today confirms and believes that there is a rebirth, that it's no more a kind of a religious thing, that so-and-so religion believes rebirth and so-and-so religion doesn't believe rebirth. Now it has been proven by science that there is a rebirth. So you could have taken birth in any other thing. So I would say even it is not late for you, all of you boys and girls. Start asking question on everything. Not to the extent of becoming too much obsessed with it. लेकिन कुछ भी अगर करना है, अगर मैं कहूँ आपको ऐसा करिए तो ask question. क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए. तो आज हमारे बीच में इसी प्रकार के एक जो आपके रोल मॉडल मैं समझता हूँ हो सकते हैं, ये हमारे बीच में हैं आज के दिन गेस्ट नीलांजना दास. आप उनको वेलकम करें. नीलांजना दास जी, प्लीज़ कम, आइए. एंड आई वुड लाइक यू टू सी अबाउट मिस दास, how she started and what she started. Let's play a audio visual, please. मकसद में जिंदगी को बदलने की ताकत है, इसलिए मतलब छोड़े, मकसद नहीं. जीवन में कुछ नया करने का जज्बा हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही किया समाज सेवी नीलांजना दास ने. खुद के बूते स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ते हुए वो कई ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता का संचार कर रही हैं. हाँ, पहले ये था कि अगर हमें 1 रुपया भी चाहिए था तो किसी से मांगना ही पड़ता था, लेकिन आज के इससे जुड़ने के बाद अगर हमें 10 रुपए की भी जरूरत है तो वो किसी से हमें लेना नहीं है, वो हमारे पास होता है. ज़्यादातर गाँव में क्या होता है, शादी के बाद लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो ये काम कर रहे तब से घर के भी है, हस्बैंड भी है, कोई मना नहीं करता, तो अपनी मर्जी से हम कहीं भी आ जा सकते हैं. अब मेरी ज़िंदगी में फिर से थोड़ा सा हलचल हो गई है. मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, खाली नहीं बैठी रहती हूँ, और फालतू की बातें सोचने का वक्त मुझे नहीं मिलता है. नीलांजना की जिंदगी का एक ही मकसद है, देश भर में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाना. और इसी सोच के साथ आपने साल 2010 में एक्शन सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्ट की स्थापना की. इस इनिशिएटिव के बाद महिलाओं में काफ़ी बदलाव मैं देख रही हूँ. नॉट ओनली इकोनॉमिकली कि वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो सामाजिक वे में उनके जो बदलाव आया है, ताकि वो अपना शिक्षा के स्तर पे हो, अपना स्वास्थ्य के स्तर पे हो, अपने परिवार के स्तर पे हो, और तीसरा उनका जो अपना आत्मसम्मान, महिलाओं का खुद का आत्मसम्मान कि वो कुछ पैसा कमा रही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो उनका आत्मविश्वास, जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन कि उसको आगे करना है, उनको आगे और बढ़ना है. ये जो एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एक इतनी महिलाओं में मैं उन पे जो ये शुरुआत कर पाए हैं, तो ये बदलाव मैं देख रही हूँ. ये संस्था आज कई राज्यों में काम कर रही है. फोटो फ्रेम और टेबल मैट से काम शुरू करने वाली संस्था के पास आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं. इस संस्था का मकसद है देश भर की महिलाओं को एक चेन से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना. तो हमारा जो मकसद था वो है महिलाओं के साथ एक लगातार जुड़ना,
और लगातार उनका जीवन शैली में बदलाव लाना, ये था। और हमारे बचपन से ही कहीं ना कहीं एक पैशन था कि हम खुद ब खुद कुछ अपनी एक शुरुआत करके एक प्रोडक्टिव काम से उसको जोड़े। तो शायद यही चीज़, ये जो स्पार्क था अंदर में और एंटरप्रेन्योरशिप का, इसलिए शायद ये हमें हिम्मत मिली कि हम ये काम, हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। संस्था के काम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब देश की महिलाएं समाज की दकियानूसी सोच को खत्म कर दुनिया के नक्शे पर एक अलग तस्वीर पेश कर सकेंगी। वेरी गुड। नीलंजना जी, क्यों आपने ये, कब क्या सोच आई आपके मन में जो आपने ये सब शुरू किया? जैसे आपने बताया कि विजन चेंज होता है, हमने पहले शुरू किया, मैंने 10 साल पहले एक अपने डेवलपमेंट सेक्टर से ही काम किया शुरू किया। फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दी और उसके बाद ये संस्था की शुरुआत की इन द ईयर 2010। क्योंकि द थिंग इज़ कि हमने जब पहले प्रोजेक्ट्स किए थे उसका था कि टाइम बाउंड, आप 1 साल काम किया, आपने 2 साल काम किया, लेकिन उसके बाद उसके सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए, एक मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए ये पागलपन सवार हुआ था कि हम सब छोड़ के यू नीड टू गेट अटैच्ड to this community, to the grassroots, to bring a continuous sustainable change. तो जब ये vision जब आया, मतलब you think what to do, you need to have a dream. तो अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ आप इसको लेके जाएंगी? जैसे अभी हमने देखा कि आपने कितना अभी तक अचीव किया है, आगे क्या आपका विजन है इसके बारे में? देखिए, विजन जो है, सपना जो है, you know, they are working with waste paper, that is paper which is basically it is a raw material. जो पेपर आप सुबह को पढ़ते हैं वो शाम तक वो बेकार हो जाता है, वो कबाड़ी बन जाता है, लेकिन that paper is becoming a resource material for them. So we are calling them as a chain of rural recyclers or upcyclers. So the vision जो है to create a chain of rural recyclers across the country. इसका मतलब यूँ कहें कि अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो आप ये कहेंगे कि जो मटेरियल घरों में वेस्ट हो जाता है उसको रिसाइकल कैसे करके कुछ ना कुछ उपयोगी चीज़ें उसमें से बनाएं और उनकी जो रूरल महिलाएं हैं उनके अंदर अर्निंग कैपेसिटी और कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें? बिल्कुल, नॉट ओनली अर्निंग, बिकॉज वंस दे अर्न द इनकम, जब उनके हाथ में पैसा आ जाता है, द सोशल डेवलपमेंट हैपन्स। दे कैन ऑल्सो केटर टू द एजुकेशन, to their health, and they also come up as the rural leaders. वो आके they are coming to the self-governance, they are coming to the panchayat. That is how the whole society is rebuilt and capacity is rebuilt. They are becoming the role models. They are becoming the examples for the others. ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, अगर जिसने, जैसे वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे कोई विजन की आवश्यकता नहीं है या मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, या मान लीजिए कोई विजन नहीं है मेरा, उनको आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? विजन इज जस्ट लाइक योर आईसाइट, जैसे कोई आईसाइट ही नहीं है, यू नो, दैट मींस यू आर ब्लाइंड. वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया, गुड थॉट. यू शुड हैव अ विजन. You should definitely have a vision as a young people. There are so many things to be done. कितना कुछ करना है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में. I think so there is ample ideas. You should have one idea which should click your mind and you should have passion for that. क्योंकि that passion which will drive you. हमारे अंदर सब कुछ है, हम सब कुछ पावरफुल हैं. We are all mighty powerful people. ये सोच होनी चाहिए. I would like to ask you that why you bonding yourself to the recycling thing? Right. Why don't you move to another areas, verticals also? Definitely. That is not a closed area at all. But now, you know, when they're making the products, they're making some handmade, recycled, but all are utility products. Now, आज हम बोलते हैं go green because there is another objective with us. You know, a vision can have 2-3, goals, and goals can have further objectives. So, another is the environment. Recycling, वो paper, plastics जो भी करती है, we want to empower the women and empower the environment. तो वो इतना, so we want to, simultaneously we are creating a eco-conscious society जो ये products को अपनाए.
बिकॉज लाइवलीहुड कहाँ से आएगा? मार्केटिंग ही नहीं होगी तो लाइवलीहुड कहाँ से होगा? सो द मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर एग्रेसिवली, द women, everybody is aggressively working on the marketing to create an eco-conscious society where people are accepting the products, are buying the products from them. Tabhi, you know, today how can we build this 500 or more? Today there are more people, and you know that is coming under this chain. So you know, in the years to come, that's the vision. You know that I'm seeing that in the another 5 years or 10 years line, we want to make it every. Why only green paper bags? Make it everything of paper. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, निरंजना की बात बिल्कुल सही है. मैं कई बार अपने विदेशी दोस्तों को कहता हूँ कि भाई अगर कल को अगली वर्ल्ड वार अगर हुई तो इंडिया विल डेफिनेटली सर्वाइव, क्योंकि हमारे एक तो कंजम्पशन सबसे कम है और जितना कुछ हम अगर निकालते भी उसको भी हम रिसाइकिल कर ही लेते हैं कैसे भी. हाँ. तो ये बड़ी बात है. हमारे दर्शक उस कैमरा में अगर उनको बताएं आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, जो गृहिणी घर में बैठी है, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, बहुत से करोड़पति अरबपति भी इस शो को देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका मैसेज उनको. माई मैसेज टू एवरीबडी जो भी देख रहे हैं इस शो को इज टू बी कॉन्शियस, to be conscious about yourself, about the society, about the community, about the environment, and wahi kare, you know, which will help them and the society to grow. This is one thing. And yes, if I'm thinking of ACT and my women, and I want to, you know, make them one super women of this country, you know, kal ke din mein ye, so to buy and to endorse the recycled products, and to help the environment, conserve the environment, and promote the whole concept. And that will make them happy as well. They will be very happy if they turn the environment green and they help the women simultaneously. They are for fulfilling two objectives. Very good. Give a big hand to Nilanjana Das. डॉक्टर सुभाष चंद्र को अकेला मोटिवेटर इस देश में नहीं है, बहुत लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं. और ऐसे ही एक मोटिवेटर हमारे बीच में है दीप्ति जी पंत. उनको मैं बुलाना चाहूँगा. शी इज़ a great storyteller. Please come. She is a design management professional and passionate storyteller, a speaker with great sense of humor and highly energetic person. She uses her storytelling technique to transform simple and mundane workplace conversation into engaging and fruitful ones. So, we would like to have some more life into these faces. Some of them are definitely smiling. मैं कहानी कथावाचक हूँ, कहानी कहती हूँ, पर मैं कहानी इसलिए नहीं कहती, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ. हाँ, अमित जैन नहीं हूँ मैं जाकिर नहीं हूँ. मैं जो कहानियाँ कहती हूँ, उन कहानियों के पीछे एक मकसद होता है. उन कहानियों के पीछे लोगों की ज़िंदगियाँ को बदलने का मकसद होता है. मैम, यू आर इनटू स्टोरी टेलिंग, तो आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? वेरी गुड. मेरी फेवरेट स्टोरी है रज़िया सुल्तान की. मोर देन दैट मेरी फेवरेट स्टोरी है इल्तुतमिश की. इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान का पिता था. उसने उस ज़माने में ये हिम्मत करी कि अपनी बेटी को एक सुल्तान बनाया. वेरी गुड. उस पिता की सोच को सोचो, उस पिता की सोच को सलाम कि उसने उस वक्त अपनी कहा कि मेरे पुत्र बेकार हैं, they cannot be great rulers. The person who will rule the land will be my daughter because she is competent. लेकिन अल्टीमेटली रज़िया सुल्तान को उसके भाइयों ने कॉन्स्पिरेसी करके उनको मरवा दिया. हाँ. तो इसीलिए मेरी वो कहानी होती, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं इल्तुतमिश की कहानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि कम से कम उस इंसान ने वो बीज तो बोया. बाद में वो परिवर्तित हुआ 300-400 साल बाद जब इंदिरा गांधी रूरल बनी. पर कहीं पे शायद हमारी एशियन इकोनॉमीज में इंडियन विमेन इतनी जल्दी ज़्यादा लीडर्स क्यों हैं अनलाइक वेस्टर्न इकोनॉमीज? क्योंकि हमारी हिस्ट्री और मैथोलॉजी उसको सपोर्ट करती है. कि अभी यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार जस्ट मिले हुए 20-30 साल हुए. 1923 में मिला है. हाँ, so ये है. Recently there has been some cases of students committing suicides. तो आप स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में किस तरीके का मोड़ लाना चाहेंगी कि उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ एक एंजॉयफुल लाइफ हो जाए?
ये तो बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया है। गंभीर भी, और क्योंकि मेरे बच्चे भी आप ही की उम्र के हैं, तो मैं रोज इन चीज़ों से डील करती हूँ कि मम्मी आज क्लास में मज़ा नहीं आया, आज ये नहीं करूँगा, आज वो नहीं करूँगा। मेरा बेटा फुटबॉल खेलने जाता है, नहीं कोच सर बहुत डांटते हैं, मैं नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से दो तरीके हो सकते हैं, एज अ स्टोरी टेलर एंड एज अ मदर, एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी। एज अ स्टोरी टेलर मैं सच बताऊँ, मैं आपके उम्र के बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ। 11th 12th एंड ऑनवर्ड्स मैं बहुत काम करती हूँ इन बच्चों के साथ। ये बच्चे मेरे साथ आते हैं कोचिंग लेने, पढ़ने। तो वो आते हैं और मैं उनके साथ बैठ के ये कहती हूँ कि आपको बनना क्या है। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अब आपसे ये शुरू होने से पहले मुझे आप ही के एक इंसान ने पूछा था कि आपको क्या क्वेश्चन, आप किस तरह से अपने विजन्स डिफाइन करती हैं। तो मैं इस तरह से कहती हूँ कि 10 साल बाद तुम इसी टाइम पे, इसी सैटरडे को 4 बजे क्या कर रहे होगे, मेरे से ये कन्वर्सेशन करो। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से फिर पीछे जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इज दिस ऑल्सो अ प्रोसेस टू सेट योर विजन? विजन, यस। राम को रावण मारना था, इसलिए उसने बाली को मारा और उसने सुग्रीव और हनुमान से दोस्ती करी। राइट? अगर रावण को नहीं मारना था, व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट फ्रेंडशिप? हाँ, कोई दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपना कंद फूल खा के 14 साल घूमते रहते, वापस आ जाते। You see? कोई याद भी नहीं करता। कोई याद भी नहीं करता। तो इसलिए जो है वो 10 साल का मैं विजन नहीं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप CEO बनो, आप शाहरुख खान बनो। मैं कह रही हूँ सिर्फ ये कहो कि मैं इस शनिवार के हर शनिवार शाम को 4 बजे में क्या करूँगा। What is your defining moment of achievement? That is the only conversation I have with them. तो एक और बताइए कि ये can we track our achievement towards the goal in the story? जी, मैं आपको इसके लिए केस स्टडी बनाऊंगी। एक बहुत कॉर्पोरेट ने मुझे एक बुलाया था, तो उनके कुछ हाई अचीवर्स थे और वो लोग सडनली दे स्टॉप्ड अचीविंग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनके साथ बैठिए और बात करिए। एक की कहानी मैं बताऊंगी। तो एक इंसान ने अपनी कहानी बताई मुझे कि वो इंसान जो है केरला में पला बड़ा था और वो अपनी नानी के यहाँ पला बड़ा था। उसकी नानी मंदिर के पास रहती थी और रोज़ सुबह मंदिर जाती थी, अपनी नानी के साथ वो मंदिर जाता था। ऐसी उसकी परवरिश हुई। जो सर कह रहे थे ना, अपनी बचपन लोगों का बहुत अगर डिफरेंट हो तो लोग डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं। ये मैंने काफ़ी देखा है। और वो जो है बॉम्बे आया और बॉम्बे में वो रहने लगा और नेचुरली एक पीजी में रहा। ना मंदिर आसपास, ना वो स्पेस केरला, ना वो ग्रीनरी, एंड हिज परफॉर्मेंस वेंट डाउन। पर 3-4 महीने बाद वो एक अपने अंकल के घर में शिफ्ट हुआ जो कि माहिम में एक मंदिर के पास रहते थे। और वो कहानी बता रहा है, मैं सिर्फ नोट्स ले रही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंगली, whenever his spatial arrangement was around a temple, he was performing. Somewhere that temple की फीलिंग, वो जर्नी उसके मन में रिलैक्स कर देती है। जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे होता है वो। मैं ऐसा समझता हूँ खुद एज इंडिविजुअल कि आजकल मकान तो रह गया है और रोटी कपड़ा की जगह मकान, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये हमारी लाइफ के कॉमन गोल शायद होने चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इन तीनों पर कोई स्टोरी कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक कॉमन मैन के लिए। जैसे सर ने कहा था, रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ ये गोल नहीं होते हैं। ये तो ज़िंदगी की नियम है, ये तो करना ही है। जैसे सांस लेना गोल नहीं होता है ना? खाना खाना गोल नहीं होता है। तो ये तो जिंदगी के नियम हैं। These are activities. These are activities of life. And action is what you need to set your goal, and then the actions are decided. Yeah, these are the byproducts of the goals. Yeah. These are the byproducts of the goal. मैं कहूँगी आपका विजन, आपका अचीवमेंट डिज़ायर, आपकी फाइनल स्टोरी अगर आपके हाथ में है और अपनी फाइनल स्टोरी से आप फेथफुल हैं, आप उससे दूर नहीं जा रहे हैं, तो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ भगवान गुरु माँ बाप पत्नी पति बच्चे सब लाइन में आ जाते हैं। सब लाइन में आ जाते हैं। अगर आपको क्लियर है कि आपको रावण को मारना है तो सब लाइन में आ जाते हैं। पर वो रावण तो ढूंढिए पहले आप। हाँ, यस। जब तक आप अपना विजन तय नहीं करेंगे तब तक कोई, जैसा मैंने कहा कि वो नहीं कुछ भी कर पाएंगे। दीप्ति जी, मेरे दर्शकों से जो घर बैठे देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपनी कहानियों की रचना खुद करो, पर ये मत समझो कि तुम अकेले हो उसे रचने के लिए। तुम्हारे साथ पूरा जहां है, अपने माँ बाप हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं और सारी सोसाइटी है। पर ये भी समझो कि अगर कहानी थोड़ी अलग होगी तो वक्त लगेगा लोगों को समझने में, उन्हें वक्त दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
दीप्ति जी आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं ज़रूर आपका ये आज जो आपका आश्वासन है, मैं ज़रूर आऊँगा आपसे स्टोरी सुनने। Thank you so much. It's an honor meeting you itself, sir. I'm such a fan of yours. Big hand for दीप्ति जी। तो आज की बात से हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या सीखा, क्या कंक्लूजन हमारा? नंबर 1 कि सक्सेस मीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। एक बात, क्या ठीक है ये बात? और वी ह्यूमंस आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर बीइंग्स। वी कैन know, we can find out what is good for us, what is bad for us, which other beings cannot do it. And we also concluded that material success is not necessarily a real success and which makes you happy. So, or without setting up a vision or a goal, like उन्होंने कहा कि रावण को मारने का अगर गोल नहीं होता राम के सामने, तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते और वो शायद लोगों के सामने वो कहानी शायद आने से रह भी जाती और आती भी नहीं. एंड acquiring knowledge helps us to widen our orbits. एक स्टूडेंट केवल इसलिए ना बने रहो कि मुझे ज़िंदगी में नौकरी करके और अपना रोटी कपड़ा मकान और या कहिए मकान और हेल्थ और नौकरी और जो भी वो करना है अचीव, बल्कि ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखिए. वो सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. hamaरा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.